बेटा ये जो है हम नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग दैट इज नोन एज ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. Generally, we denote by the symbol. Just write T. It means transpose of a matrix. Or we use this symbol A to the power dash. Both represent the transpose of a matrix. It means you have to change row into column and column into row. Okay. Any matrix, if we have, suppose we are having a matrix of order m cross n, then transpose of the matrix will have order n cross n. For example, if we have taken this matrix 1, 2, 3, A, B, C. Okay. If we do the transpose of this matrix, it will be equal to, we have to change row into column and column into row. 1, 2, 3 or A, B, C. It is known as the transpose of a matrix. The order of this matrix is 2 by 3 and order by this matrix is 3 by 2. It is known as the transpose of a matrix. We have to convert row into column and column into row. It is very simple. There is nothing you have to do. You have to interchange row into column and column into row. Generally, we denote by transpose of a matrix. A, we have the matrix, suppose Aij. Aij means this is the element 1, 1, 1, 2 represent for any order m cross n. Then transpose of the matrix will be Aj, where the order will be n cross n. देखिए जो एलिमेंट हमारा A12 था अब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा, है ना. यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है 1, 2 वाला क्या हो जाएगा 2, 1. इट इज एलिमेंट ऑफ 1, 3. दिस विल बी A31. ये एलिमेंट बी जो है बी की जो पोजीशन है ये पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, 2. ये क्या हो जाएगा ये सेकंड रो, ठीक है, बी सॉरी बी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम ही रहेगा. जो स्क्वायर वाली शेप में होंगे 1, 1 एलिमेंट 2, 2 एलिमेंट, their position will be same. Otherwise, the other position will be not same. If we have to find out the transpose of transpose, suppose करिए if we do the transpose again, देखिए transpose of the matrix was Aij. If we have done one time transpose, if we do the again time transpose, it become Aij, यानी कि it is equal to A. दोबारा देखो आप इसको, हमने क्या किया, पहले जो मैट्रिक्स थी उसको ट्रांसपोज करना है तो यू हैव टू पोजीशन इंटरचेंज करनी है. ए आई जे का मतलब है आपको ए जे आई कर दिया आपने एक बार, फिर इसको दोबारा ट्रांसपोज करना है, फिर जे आई की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, देन इट बिकम्स ए आई जे. यानी कि वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारी स्टार्टिंग की थी. जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो यहाँ आ गया. अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगा फिर क्या आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, जैसे माइनस माइनस में होता है ना, सेम उसी तरीके से. ठीक है, माइनस माइनस टू टाइम्स भी मेक इट विल बिकम प्लस, सेम मैट्रिक्स आ जाती है, सेम टर्म आ जाती है, सेम इसी तरीके से. एक बार हमने ट्रांसपोज किया तो 2/3 की मैट्रिक्स बिकम 3/2. इफ वी डू अगेन ट्रांसपोज तो इट बिकम विल बी 2/3 मैट्रिक्स. तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स
A. If we add two matrices A plus B, two matrices हैं, उनका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो रिजल्ट विल बी, इट मीन्स A plus B का मतलब इट रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स Aij सपोज प्लस Bij, ठीक है। These are we are taking the corresponding element. जब भी कभी हम टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, we add the corresponding element. A11 will be added to AB11. ठीक है, both the matrices are comfortable having the same order, then we can add both the matrices. ठीक है, that's why I have written here Aij plus Bij. So you can write this one, Aij को you can write Aji. ठीक है, Aji अगर if you write plus Bji, तो it will be the transpose of this matrix, or Bji, this is the transpose of element of set the matrix B. You can write transpose of A plus transpose of B. Yani कि if you want to make the solution of transpose of matrix A plus B, so we can add separately by doing the transpose first. You have to find out the value of A plus B transpose. You can find in this way also. First you transpose the matrix both, then you can add. Or you can also add first, then you can make the transpose. So this is the property of adding the two matrices and making transpose. The transpose of matrices A plus B equal to transpose of A plus transpose of B. In the same way, you can use the scalar multiple. ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आई एम जस्ट स्पेलिंग दिस वन। देखिए स्केलर मल्टीपल में क्या होगा, के ए, ठीक है। वी आर taking the scalar multiple of transpose matrix. It means you have to take care of K, A, Ij. You have to do the transpose now. We have written the general term. Now you are doing the scalar multiple Ji, you have done the transpose, which is a scalar multiple. So you can write in this way also, K, Aij, Ij को you can write separately transpose, यानी कि it is equal to K A transpose. In this way you can write, यानी कि we are doing the transpose of matrix, so you can write in this way, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे we have taking the scalar multiple, so you can use the matrices multiplication, ठीक है। What will be happen if we do the transpose of two matrices multiply? First, you just see it will be in reverse order, है ना। In addition में there is no problem, but in multiplication में the order get reversed. AB to the power t, यानी कि transpose of AB will be equal to transpose of B into transpose of A. Suppose you have the matrix A whose order is n cross n, and matrix B whose order is n cross P, then it will be conformable for multiplication. So order of AB क्या होगा, that will be equal to, हमने जैसे बताया था आपको, n से n कैंसिल हो जाता है, the order will be n cross P.
ए बी का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी एम क्रॉस पी। तो सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोज ऑफ बी या ट्रांसपोज ऑफ ए का निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा बोलो? ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा दैट विल बी एन क्रॉस पी, पी क्रॉस एन। ठीक है, ऑर्डर विल बी पी क्रॉस एन, और ट्रांसपोज ऑफ ए दैट विल बी, ए का हम ट्रांसपोज करते हैं दैट विल बी एन क्रॉस एन। सॉरी, ये वी हैव रिटन द ए बी का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एन क्रॉस पी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी का ऑर्डर दैट विल बी क्या होगा? पी क्रॉस एन। Now you are observing we have find the transpose of B order will be, we have taken B n cross P, so P cross n. Transpose of A will be n cross n. So transpose of B and transpose of A, it will be equal to order. What will be the order? N से n will be cancelled, P cross n. So first we have checked the order. ठीक है, दोनों का ऑर्डर कैसा होगा? वो सेम ही होगा। Up, we have just see the how we will multiply this. For multiplication, suppose we are doing AB transpose. AB transpose will be equal to A B J I, है ना? ट्रांसपोज किया हमने, तो जो भी एलिमेंट होगा दैट एलिमेंट विल बी, ए बी का एलिमेंट अगर आई जी से है तो दैट विल बी इक्वल टू जे आई। इसको वी कैन राइट इन दिस वे, मल्टीप्लिकेशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो लेते हैं दैट इज आर इज इक्वल टू 1 to n, और द वैल्यू ऑफ इक्वल टू ए जे आर और बी आर जे, बी आर आई। ठीक है, क्योंकि अब ये सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो, आर इज इक्वल टू 1 to n बी आई आर ए आर जी। So you can write here it is equal to B transpose of B IR transpose of B into transpose of A, and it is equal to B to the power B into A to the power A. ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको, ये आपको इस तरीके से लिखना नहीं होगा। तो पहले तो आपको ये देखो, ये चेक क्या करना है आपको, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक तो कंफर्मेबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, जितने फर्स्ट वाले के रो हैं कॉलम में, सॉरी सेकंड वाले के रो होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का ऑर्डर दैट विल बी एन, फिर हमने बी का ट्रांसपोज भी, ट्रांसपोज ऑफ बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी विल बी द ऑर्डर ऑफ पी क्रॉसिंग। द ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम। ठीक है, और द वैल्यू इज आल्सो कमिंग सेम। तो corresponding element we are getting same, so matrix का order that will be reversed. You have to remember this one. ठीक है, the proof is not in your syllabus. ठीक है, proof they no need to be remember, but you have to remember the property. तो matrix multiplication में you have to reverse the matrices in the same way as you have multiplied. Suppose there are three matrices, ठीक है, तो थ्री matrices है, तो in the same way you will be reverse the order A B C. If you are doing the transpose of this multiplication of matrices, then it becomes C B A.
बस और कुछ नहीं करना है आपको. Order you have to reverse. Whatever they have given the matrices, you have to make the reverse order if the matrices they have given in the uh, multiplication order. ट्रांसपोज किया ना, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इनका ट्रांसपोज की तरह. But I do not have the your NCERT book. Just I am explaining some question. किस टाइप के क्वेश्चन यू कैन हैव. ठीक है, जैसे ये आपको मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ. कोई भी मैट्रिक्स यू कैन टेक. जस्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल. 2a टू द पावर t है, और सेकंड हमें वी वांट टू प्रूव दैट 2a टू द पावर t. सेकंड वी हैव टू टेक द एग्जांपल a प्लस b टू द पावर transpose. It will be equal to b to the power t plus a to the power t. And a b third option we have taken a minus b transpose. ठीक है, a minus b transpose equal to a to the power transpose minus b to the power. फोर्थ है आपका मल्टीप्लिकेशन में ए बी टू दी पावर टी इज इक्वल टू बी टू दी पावर टी इंटू ए टू दी पावर टी. तो 4 टाइप्स के मैंने आपको ये क्वेश्चन लिए हैं. इसमें जो ना दे विल गिव यू सम मैट्रिसेस, तो यू हैव टू वेरीफाई, है ना. ये चारों हमने वेरीफाई करने हैं. कोई एक क्वेश्चन वी आर टेकिंग. सपोज वी टेक मैट्रिक्स ए whose element are simple element we are taking 1 2 minus 1 0. This is the matrix A. So first of example we have taken 2a. First we have to find out the 2a. 2a is equal to how much? It will be equal to 2 4 minus 2 or 0. Still we have to find out the left hand side is how much? 2a transpose. If we do the transpose of this matrix, it will be equal to 2 4 minus 2 0. ठीक है. अब now we have to take the first transpose, then we have to multiply with 2. Then what we will get? We will get, देखो ट्रांसपोज करते हैं 1 2, है ना. ट्रांसपोज क्या होगा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ. चलिए आपको दिखाई नहीं देगा इसमें, मैं इसको है ना डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना. ट्रांसपोज अगर हम करते हैं इसका क्या होगा? 1 2 इधर आएगा तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया, है ना. 2 इधर आएगा तो कितना हो गया? 4 हो गया. -1 इस साइड जाएगा तो -2 हो गया. 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया. तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है दोनों साइड इक्वल हो गई, ये वेरिफिकेशन हो गई. तो क्वेश्चन आपकी जो बुक में होंगे, यू हैव टू verify in this form. Just I have taken simple example. It may be 2 by 2 matrix also, 3 by 3 matrix also. The method will be same. Okay, because presently I don't have your NCERT book. That's why I am just explaining by taking example. Otherwise, I can explain question wise as they have given in your book. Okay. First part this is completed. Now we are taking the second part. Second part के लिए we required matrix B also. So first we have to find out the value of A plus B. तो A plus B के लिए A plus B. A matrices I have taken this one 1 2 minus 1 0. चलिए B where we can take any matrix. Suppose करो 2 1, ठीक है, -2 -1. So what will be the value of A plus B? The value of A plus B, corresponding element we will add 2 or 1 3, 2 or 1 3, again -1 -2 -3, or ये -1. This is the value of A plus B. If we do the transpose of this matrix,
A plus B transpose, it will be equal to 3 3 minus 3 minus 1. Or if we do the value, now we want to find out the value of transpose of A plus transpose of B. What will be the value of transpose of A? Transpose of A will be equal to 1 2 minus 1 0, or transpose of B, it will be equal to 2 1 minus 2 minus 1. If you add both the matrices, you get the same answer, 3 minus 3 3 or minus 1. So it means it is verified now that A plus B transpose equal to transpose of A plus transpose of B. ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जो आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, अब हम जो है थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी इसी तरीके से ए माइनस बी वाला कर सकते हैं. तो माइनस वाले में क्या होगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा. ये मैंने जैसे इस तरीके से ए प्लस बी बताया है, बस साइन हम इंटरचेंज कर लेते हैं. मेथड तो यही रहेगा. ठीक है, तो साइन की जगह जो मैं से उसको रब कर देता हूँ बस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लस की जगह हम माइनस ले लेंगे और ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी ये वाली. और यहाँ पर हमने जो किया प्लस की जगह या माइनस है. देखो इसी में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं होता तो उसको रब कर लेते हैं, कोई बात. कोई भी आप एग्जाम्पल आप ले सकते हो. बी मैट्रिक्स को मैंने रब कर दिया, कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे हमने ए माइनस बी में किया. ठीक है, तो जैसे प्लस में किया वैसे ही आपको माइनस में करना है, बस इतना ही फर्क है. आप कोई भी मैट्रिक्स आपने ली है ना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, इट विल बी इक्वल टू. आप पहले क्या करो, पहले हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है ना. तो ए माइनस बी क्या होगा, मैट्रिक्स ए क्या है आपकी, ए हमने ली 1 2 माइनस 1 0. बी कोई भी मैट्रिक्स लेगा है ना, पहले क्या ली थी मेरे को याद नहीं. ठीक है, माइनस बी अगर हम लेते हैं, माइनस 1 ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पर 1 ले लिया, माइनस 1 ले लिया. फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे. पहले हमने क्या करना है, पहले माइनस करना है फिर ट्रांसपोज करना है. तो अगर हमने जो है इसको पहले माइनस किया तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया. इसको ट्रांसपोज कर दिया हमने, कितना हो गया 2 माइनस 1 और माइनस 2 1. अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि पहले ट्रांसपोज करें फिर सबट्रैक्ट करें. ठीक है, तो पहले अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फिर सबट्रैक्ट करते हैं, तो ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 2 माइनस 1 0 माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी कितना होगा माइनस 1 3 1 माइनस 1. अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस माइनस कितना आ गया 2 आ गया, माइनस 1. ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 आ गया. यहाँ पे कितना आया 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1. तो दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया माइनस के लिए. तो जिस तरीके से हमने प्लस का किया था उसी तरीके से हमने माइनस का वेरीफाई कर दिया. अब आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रहता है
बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से वेरीफाई करने हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको ये एक्सप्लेन किया है। देखो बेटा, टू मैट्रिक्स इफ यू टेक, सपोज करो ए मैट्रिक्स हमने ली आपकी 1 0 -1 2। बी मैट्रिक्स वी आर टेकिंग 2 3 -1 0। ठीक है, व्हाट विल बी इक्वल टू ए बी? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी। ए बी विल बी इक्वल टू 1 into 2 2, 0 into 3 0, 1 into -1 -1। ठीक है, 0 into 0 0, फिर -1 into 2 -2, और 2 into 3 6, -+1, और 2 into 0 0, यानी कि इट इज इक्वल टू 2 -1 4 और 1, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी is equal to how much? It is equal to 2 -1 4 1. It is a transpose of AB. Now we have to verify that it will be equal to b to the power t into a to the power t. So b to the power t will be transpose of b. It will be equal to 2 -1 3 0. Or transpose of a, it will be equal to 1 0 -1 2. ठीक है, transpose of b into transpose of a. If you multiply this one, it will be equal to 2 3 into 0 0, or 2 into -1 -2 plus 6, -1 into 1 -1, it is 0, -+1 into 0, it is equal to 2 4 -1 or 1. ठीक है, अब you are observing that 2 4 -1 1, we are getting the same answer. It means transpose of AB is equal to transpose of B ट्रांसपोज ऑफ सी। यही हमें वेरीफाई करना था। तो जितने भी पॉसिबिलिटी आंसर थे, वो क्वेश्चन के जो भी पॉसिबिलिटी बनती थी, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो अब इसको हम इसको रब करते हैं। एक बार और समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको काफी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन किया है। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बट ट्रांसपोज पे यू हैव टू मेक द रिवर्स ऑर्डर। There are two types of matrices. One is known as the symmetric matrix and another is a skew symmetric matrix. ठीक है, if we do the transpose, if transpose of a matrix is equal to itself of a matrix, then it is known as a symmetric matrix. If the transpose of a matrix is equal to minus a, that is known as a skew symmetric matrix. It is a symmetric matrix. It is a skew symmetric matrix. ठीक है, it is a symmetric matrix and skew symmetric matrix. Transpose of A equal to minus A.
ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको जो भी एलिमेंट है, देखिए कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, वी जस्ट चेंज द एलिमेंट ए जे आई, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज ए आई जे। ठीक है, यहाँ पर इफ यू पुट आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे वी टेक, तो क्या होगा, इफ यू पुट आई इज इक्वल टू जे, तो व्हाट विल बी हैपन, ए आई जे, ए आई इक्वल टू ए आई, यानी कि ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री जो एलिमेंट होंगे वो कैसे एलिमेंट होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये माइनस का होगा, है ना, माइनस का है, अगर माइनस के ए जे आई है इक्वल टू ए आई जी के इक्वल है, इफ यू पुट आई इज इक्वल टू जे है, तो माइनस के ए आई आई इक्वल टू हो जाएगा ए आई आई। कब, जब हम आई इज इक्वल टू जे ले रहे हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू जे कब होता है, यानी कि टू आई 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 कितना हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे, कौन से वाले एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं, ये वाले एलिमेंट, यानी कि ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो जीरो के इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, ये टू, है ना, अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया उसमें माइनस के साइन का फर्क होगा, यानी कि वन टू बराबर होगा माइनस के टू वन के। यहाँ अगर मैंने टू लिया, ये वन टू है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू होगा। यहाँ थ्री लिया मैंने अगर आपको, तो किसके बराबर होगा, ये माइनस थ्री की। यहाँ पर माइनस थ्री लिया तो ये प्लस थ्री के बराबर। यहाँ आपने यहाँ लिया वन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे, देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो, ये मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ए ली है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें क्या होगा, जीरो, आप ऑर्डर चेंज करोगे, जीरो टू माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस टू जीरो वन, और ये कितना है आपका, थ्री माइनस वन जीरो। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो आप, है ना, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए के, है ना। माइनस से इफ यू आर टेकिंग कॉमन, यू हैव टू टेक द कॉमन, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, so it will become the original matrix that was A, so it is equal to minus A। इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, the diagonal elements are equal to जीरो, और corresponding जो वन टू अगर हम लेते हैं एलिमेंट, वन टू इक्वल टू विद माइनस साइन बाई टू वन। तो ये चीज आपको समझनी है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होगा, और ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए है, तो इसकी सिमेट्रिक होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट दे इट मे नॉट बी सिमेट्रिक और मे नॉट बी इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, so you have to take care of symmetric matrices and skew-symmetric matrices. These are the matrices. If we do the transpose of A equal to A, that is known as a symmetric matrix. Transpose of A equal to minus A, it is a skew-symmetric matrix. ठीक है, इसके skew-symmetric matrix में we observe the diagonal elements equal to zero. How it is coming to zero? जैसा I have explained you here. If we put I is equal to J, तो AI 2 AI equal to J, if you are dividing by 2, II का मतलब we are taking the 1 1 element or 2 2 element or 3 3 element, these are equal to 0. If we take 1 2, it will be equal to minus A2 1, है ना। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि A1 2 किसके इक्वल होगा, माइनस टू वन के। तो उसी तरीके से हमने 1 2 को माइनस A2 1 के इक्वल ले लिया, A1 3 को माइनस से 3 1 के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो ये आप ये वाली एक्सरसाइज में, मेरे को नहीं पता कितने क्वेश्चन है, आप ये एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 3.2 तो हमने कंप्लीट कर ली थी।
आप 3.3 एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जो आपकी समझ नहीं आया यू कैन आस्क योर क्वेरीज नाउ, ठीक है। हेलो संजय सर, any student want to ask any problem you can now ask me.